Guys, if we talk about the books given in the RBI notification, तो कम से कम RBI notification में under suggested reference material they have given you more than 15 books. और ये बुक्स पढ़कर शायद आपकी 50% प्रेपरेशन भी नहीं होती है. ऐसा क्यों? लेट मी एक्सप्लेन यू दैट. इफ आई टॉक अबाउट फेज वन, देन इन फेज वन एक्चुअली जो आपका 40% वेटेज है दैट इज टू जीए. फॉर दैट देयर इज नो बुक एक्चुअली. ठीक है. देन even in quant reasoning and English, though there is no book mentioned in the notification, but even if you read some quality books, then also you need to practice a lot of MCQs in form of sectional test and mock test. तो at least 10% मैं ये बोलूंगा कि आपकी बुक्स पढ़कर इवन QRE में भी प्रिपरेशन नहीं होती है, which is like 50% of your preparation in phase 1 is not being done from any book. And if I talk about phase 2 also, right, phase 2 की बात करें तो descriptive English is 100, for which again there is no book in the market which can help you prepare descriptive English. ESI की बात करें तो 70 marks of your paper is based on current, for which again there is no book. FM की बात करें तो again around minimum 30 marks is from current affairs, which is like 200 marks out of 300, right, is based upon something which is not being covered in the books which is given in the suggested reference material in RBI grade B notification. तो इसी को देखते हुए today I am going to discuss something very special about books. सबसे पहले तो we will discuss के how the books given in the notification can be relevant and non-relevant, मतलब कौन सी relevant है, कौन सी relevant नहीं है. Then apart from those books, which other books you should be reading, right, to have a comprehensive coverage, right. Then even for things like, just as I told you, which are not covered in any of the books, how can you cover them to have a full comprehensive coverage for your preparation के 100% coverage हो जाए. उसके लिए कौन सी सोर्सेज करनी है. और इंटरव्यू प्रिपरेशन जिसकी कोई बात ही नहीं करता है, हाउ कैन यू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, राइट, विच आर द सोर्सेज यू शुड बी यूजिंग फॉर इंटरव्यू, इन सब के बारे में बात करेंगे. सो वी विल बी बेसिकली डिस्कसिंग अबाउट फेज 1, फेज 2 एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन सोर्सेज एंड बुक्स. लेट मी स्टार्ट विद फेज 1. क्वांट की बात करूं, देयर इज नो बुक मेंशन इन द नोटिफिकेशन, बट दिस वन बाय अरुण शर्मा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कैट, इज अ रियली गुड बुक. आरबीआई का लेवल कैट से ही मिलता जुलता है, मुश्किल ही हो गया है. यहां पे मैं एक टिप देना चाहूंगा कि यू मे रीड एनी नंबर ऑफ बुक्स, बट आई थिंक द की लाइज इन द सिलेक्शन क्राइटेरिया, दैट इज हाउ डू यू सेलेक्ट योर क्वेश्चंस इन द एग्जाम एंड डू मैक्सिमम क्वेश्चंस इन अ लिमिटेड टाइम. तो उसके लिए सिर्फ ये बुक पढ़ने से कुछ नहीं होगा. यू वुड हैव टू सॉल्व लॉट ऑफ मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट टू लर्न दैट आर्ट ऑफ सिलेक्शन. और बहुत सारे आपको सेक्शनल टेस्ट तो फ्री मिल जाते हैं वेबसाइट्स पे जाकर, बट दे शुड बी ऑफ आरबीआई ग्रेड बी लेवल. यू हैव टू एंश्योर दैट. उसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देख लेना. सिमिलरली फॉर रीजनिंग देयर इज नो बुक मेंशन इन द नोटिफिकेशन. सो बुक आई एम सजेस्टिंग you to read is verbal and non-verbal reasoning by R.S. Agarwal. अच्छी बुक है. The only problem is that this book has a lot of topics and many of them might not be relevant for RBI grade B. So please choose your topics wisely by looking at the previous year papers. और इसमें भी the trick is to learn the art of selection, which will only come by solving a lot of mock test and sectional test. For English, again, there is no book mentioned in the notification. I can suggest you two books. One is Objective Journal English by S.P. Bakshi. Then there is Word Power Made Easy by Norman Lewis to actually help you increase your vocabulary. लेकिन English में the one tip that I want to give you is कि भैया reverse engineering follow करो. Grammar is a very long process, long continuous process. Only if you can follow that. So rather use reverse engineering where you can solve a lot of MCQs, sectional tests, mock tests, find what type of questions are being asked, find your strengths and weaknesses and try to make a plan accordingly. पूरा इन किताबों को पढ़कर आई थिंक टू लर्न ग्रामर इट्स अ रियली बिग टास्क. करंट अफेयर्स की बात करें, सो करंट अफेयर्स इन आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम आर बेसिकली नॉट वेरी सिंपल करंट अफेयर्स लाइक दे कम इन अदर बैंकिंग एग्जाम. इट्स अमैल्गमेशन ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स. जीए तो आती है लाइक नॉर्मल रिपोर्ट्स, नॉर्मल थिंग्स लाइक नो अवार्ड्स, ऑब्ituaries, स्पोर्ट्स डेज, थीम्स. बट उसके अलावा यू गेट रिपोर्ट, स्कीम्स, फाइनेंस करंट अफेयर, ईएसआई करंट अफेयर एंड आरबीआई नोटिफिकेशंस एंड रेगुलेशंस. So here your scope is really wide, and the sources, if you really want to prepare from the golden source of truth, I would say Hindu, PIB, Livemint and RBI website to study the RBI notification and RBI regulation. So ये कुछ चीजें हैं जो आपको करंट अफेयर में पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से, right? But then again, it's better to read from compiled sources rather to read these resources, because यहाँ से चीजों को फिल्टर करना, relevant information को ढूंढना, compile करना, that's a big task. तो better is that use some compiled sources. और current affairs को जब भी पढ़ें,
5 months of current affairs for phase 1 is good enough. This year, I think even just from the last 3 months, 60 out of 80 questions came, which is like 70-75% from the last 3 months. मैं तो 5 महीने के पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ. और अगर compiled sources नहीं है, you are not part of any of the enrolled courses, then I would suggest that please watch these free videos on our YouTube channel. One is on PIB by Gurkirat sir and another is on Finance Current Affairs by Kritika ma'am. So यहाँ से आपकी काफी चीजें right for your GA portion in RBI Grade B Phase 1 would get covered, but do complement it. This is not a comprehensive complete solution. Do complement it with some other study material. Now coming on to Phase 2 guys, right? Phase 2 की बात करें तो सबसे पहले मैनेजमेंट की बात होती है FM में, right? The most scoring portion. And if I talk about management, यहाँ पे बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं, but I would suggest only one book from this, that is BN घोष की Ethics and Corporate Governance की. बाकी बुक्स are by foreign authors, ठीक है, अच्छी हैं, बहुत डिटेल्ड है. आई थिंक यू आर नॉट सपोज टू स्टडी दिस बिकॉज दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू. आप सिंपल बुक्स पढ़कर प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट बाय एल.एम. प्रसाद एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बाय एल.एम. प्रसाद, आप सिर्फ ये 2 बुक्स पढ़कर आप अच्छे से मैनेजमेंट में स्कोर कर सकते हैं. एंड द टिप दैट आई वुड लाइक टू गिव यू इन मैनेजमेंट इज के अगेन बुक्स पढ़कर यू विल नॉट लर्न द आर्ट ऑफ एप्लीकेशन, सिर्फ नॉलेज आएगी. सो मेक श्योर कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, नहीं तो आपकी प्रिपरेशन वही 50% ब्रैकेट में रह जाएगी. उसको 100% लाने के लिए you would have to solve lot of questions here to learn the art of application. Now moving on to the finance static here, right? Now finance static की बात करें, you might be getting some noise here because someone's birthday is being celebrated, so happy birthday to Nishant in my team. Finance static की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी बुक्स दी गई हैं. Most of them are actually from, what do I say, from economics base. जैसे कि मॉनेटरी थ्योरी एंड पब्लिक पॉलिसी, इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो अगेन फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स आर रिलेटेड, बट आई सपोज यू आर नॉट रिक्वायर्ड, दैट इज नॉट द नीड ऑफ द आवर कि आप इतनी हैवी बुक्स पढ़ो और आप ये समझ भी नहीं पाएंगे आई थिंक अगर आपका इनमें बैकग्राउंड नहीं है. तो इन बुक्स को मैं नहीं सजेस्ट करूंगा. रेदर आई वुड सजेस्ट यू रीड प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग बाय मैकमिलन एजुकेशन एंड बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय मैकमिलन एजुकेशन. दोनों बुक्स आपकी स्कोप आपको अच्छा बता देंगी दैट व्हाट इज द स्कोप ऑफ योर प्रिपरेशन, बट बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है. इट विल नॉट हेल्प यू स्टडी everything in a lucid manner, so you would have to use Google and complement lot of material with these books. Many people tell you Indian Financial System by Bharti Pathak, big no, very bulky book, contains lot of regulations. Then there is Indian Economy by Ramesh Singh, which can help you cover lot of topics in your finance static syllabus like inflation, union budget, functions of RBI, which are actually related to finance in some way. तो ये आप बुक्स पढ़िए, राइट. और फाइनेंस स्टैटिक के लिए एक टिप मैं यही दूंगा दैट इन बुक्स को पढ़ के कुछ नहीं होने वाला है. यू वुड हैव टू रिलाई मोर ऑन गूगल, आरबीआई वेबसाइट एंड सम अदर वेबसाइट्स, ठीक है, जैसे कि इन्वेस्टोपीडिया. आरबीआई वेबसाइट से आप एफएक्यूज कर सकते हैं, आरबीआई की रेगुलेशंस पढ़ सकते हैं. जैसे कि अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे FAQs on the RBI website, it will take you to this page where you can see there are a lot of FAQs in different areas. What you need to do is to map these FAQs with your syllabus and find out that which ones are relevant for you. Previous year questions को जरूर बार-बार देखें इन FAQs को select करते हुए. Now coming on to the notifications, under notifications tab you will find master directions. Master directions मतलब जो main regulations है उस area में. तो here you will find regulations in various areas. अगर financial inclusion में है, that can be useful for your financial inclusion part of your syllabus. Payments and settlement system में है, that can be useful for your digital payment part of your syllabus. तो इसको जरूर देखें एक बार, इसमें से बहुत सारी master regulations आपको मिलेंगी जो एग्जाम में पूछी जाती हैं. इस साल एक रेगुलेशन थी कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड, उससे 4 क्वेश्चन आए थे 8 नंबर के. सो यू कैन नो द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज आरबीआई रेगुलेशंस, ठीक है. फाइनेंस करंट की बात करें तो यहाँ पे अगेन बहुत सारे सोर्सेज दिए हुए हैं. मेजर फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स जिसमें आई वुड से लाइव मिंट, ठीक है. आरबीआई एनुअल रिपोर्ट हमें पढ़नी है, आई हैव एडेड इट हियर. रिपोर्ट्स ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग, आई हैव एडेड इट हियर. Report on currency and finance, right? I have added it here. Report on currency and finance, I have added it here. Apart from that, financial stability report by RBI and union budget and economic survey report by RBI. These are very, very important for you, right? तो आपको ये पढ़नी पड़ेंगी. यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं. Apart from that, notifications on RBI website is also something very important. और ये सारी चीजें आपको पढ़नी है. इसमें RBI
नोटिफिकेशंस और आरबीआई की जो रिपोर्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इवन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन योर पेपर फ्रॉम द आरबीआई रिपोर्ट्स. करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आया था इस बार शायद 15 नंबर का. और ये सारी चीजें आपको आसानी से आरबीआई वेबसाइट पे मिल जाएंगी. If you go to publications under that annual, you will find RBI annual report and reports on trends and progress of banking in India. And in publications itself, if you go to half yearly, you will find financial stability report. तो ऐसे आप यहाँ पे reports ढूंढ सकते हैं RBI वेबसाइट पे. बाकी जो RBI की notifications हैं for current affairs, not for master directions which I told you earlier. तो notifications के अंदर यहाँ पे बहुत सारी regulations आप देख सकते हैं which are month wise, right? अगस्त चल रहा है, फिर जुलाई आ गया, जून आ गया. सो नीड टू फिल्टर आउट द रीसेंट वंस बिफोर योर एग्जाम, 5 से 6 महीने बिफोर योर एग्जाम, एंड ट्राई टू फिगर आउट which ones are important, which ones are more probable to be asked in the exam, and you can only do so if you try to analyze the previous year papers. ESI स्टैटिक पे आते हैं, फेज 2 में जो आपका दूसरा पेपर है. यहाँ पे बहुत सारी बुक्स हैं. उमा कपिला है, मिसापुरी है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की देबराज रे है. अगेन वेरी गुड बुक्स, इन डेप्थ बुक्स. आप चाहें तो उमा कपिला भी पढ़ सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, राइट. बहुत अच्छी बुक है, सिंपल लैंग्वेज में है. एंड फॉर सोशल इश्यूज, सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया बाय राम ओझा. बट एक टिप जो आपको याद रखनी है, ESI पेपर इज मेनली करंट ओरिएंटेड. आपको ये पढ़नी है, बट जस्ट टू हैव योर बेसिक्स राइट, सो दैट यू कैन एटलीस्ट आंसर सम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन इन द एग्जाम. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ज्यादा करंट ही पूछते हैं. सो बी फ्रूगल इन स्पेंडिंग योर टाइम हेयर. डू नॉट वेस्ट योर टाइम हेयर जस्ट एज्यूमिंग कि इसको पढ़कर नंबर आएंगे. नहीं आएंगे. इसको कम पढ़कर, करंट अफेयर्स को ज्यादा पढ़कर ज्यादा नंबर आएंगे. एंड इफ आई टॉक अबाउट ESI करंट, यहाँ पे आपको बहुत वेटेज है आपका ESI करंट का एग्जाम में, अराउंड 70 मार्क्स आउट ऑफ 100 आई वुड से. तो यहाँ पे जो मेन चीजें हैं वो आपको स्कीम्स प्लस प्रोग्राम्स प्लस पोर्टल्स पूछे जाते हैं, जैसे कि ईश्रम पोर्टल पूछा गया था. रिपोर्ट्स पूछी जाती हैं, राइट. एंड ESI करंट अफेयर पूछे जाते हैं. 2 मेन एरियाज वुड बी स्कीम्स, पोर्टल्स एंड रिपोर्ट्स. और इसके लिए द बेस्ट सोर्सेज इज स्कीम्स के लिए PIB एंड फॉर रिपोर्ट्स आई वुड से हिंदू. बट अगेन मतलब के टू रीड इट फ्रॉम दीज सोर्सेज, फिल्टर आउट, कंपाइल इट इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. सो आई वुड सजेस्ट रीड सम कंपाइल्ड थिंग्स. बाकी यहाँ पे आप देखिए प्रोमिनेंट फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स मेंशन्ड है नोटिफिकेशन में. तो हिंदू आपने पढ़ना है, हालांकि फाइनेंशियल न्यूज़पेपर लाइनमेंट होगा, बट हिंदू आपने पढ़ना है. दे हैव आल्सो मेंशन्ड EPW, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, एंड इंडिया टुडे. If you get time, read it, but I think it's very difficult to read so many of the sources, so you have to limit yourself. Then World Development Report मैंने लिखी है यहाँ पे. वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये आपको करनी है, ठीक है. आरबीआई एनुअल रिपोर्ट हम फाइनेंस में पढ़ चुके हैं. रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग हम फाइनेंस में पढ़ चुके हैं. रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है. तो ये 4 रिपोर्ट्स हैं जो आपको ESI में जरूर पढ़नी है. अगेन लॉट ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस इस बार पेपर में आए थे. आई थिंक एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में से आया था, या वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में से एक रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस में से आया था. सो डे बाय डे दीज रिपोर्ट्स आर बिकमिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है. और जैसा मैंने बोला, कंपाइल्ड मटेरियल में से पढ़िए, ना कि हिंदू और PIB से. मैं कुछ वीडियो सीरीज भी आपको बताऊंगा. और जो फेज 2 के करंट अफेयर्स हैं, दैट शुड बी मिनिमम 6 मंथ्स, मैक्सिमम 8 मंथ्स, दैट्स इट. उससे ज्यादा नहीं जरूरत है आपको. मिनिमम 6 मंथ्स, मैक्सिमम 8 मंथ्स, ठीक है. और ये हमारे करंट अफेयर्स हैं जो आप इन वीडियो सीरीज के थ्रू भी पढ़ सकते हैं. गुरकीरत सर और कृतिका मैम की सीरीज हैं ऑन PIB एंड ESI करंट अफेयर्स. आप इनको पढ़िए. इट विल गिव यू lot of things in a very lucid manner which you can absorb easily and you can retain till your exam time. Retention is very very important here. बाकी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश. अब डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है फॉर विच यू विल नॉट फाइंड एनी बुक इन द मार्केट, आई मीन विच कैन एक्चुअली हेल्प यू प्रिपेयर 100% फॉर RBI. आई थिंक द बेस्ट सोर्स फॉर दैट वुड बी आप नरवीर सर, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे देयर इज अ फ्री सीरीज बाय नरवीर सर एवरी नाउ एंड देन ऑन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश. आप उसको देखें. He has taught from basics to advanced level on essay, comprehension, Pressy, and even letter writing which comes in NABARD. तो इसको अच्छे से देखिए. I think this can be starting point. Watch this video not only 2, 3, 4 but 10 times so that everything is pretty clear in your mind that what shall be your approach. एक बार ये clear हो गया, then you need to practice. For that I would suggest that read editorials and type that editorials on your computer, either an essay or as an Pressy. That's it. Just 20 minutes a day of your practice can actually help you prepare for these 100 marks in your examination, which most of the people are not doing. ठीक है. बाकी इंटरव्यू के लिए
अगेन देयर आर सो मेनी गाइड्स बुक इन द मार्केट, आप पढ़ना चाहे पढ़ लें, बट मैं एक चीज आपको बोलूंगा, सत्यन डेविड सर का एक इंटरव्यू है जो मैंने लिया था, हाउ टू एस आरबीआई इंटरव्यू। नाउ ही इज वेरी एक्सपीरियंस्ड, ही हैज बीन मेंबर ऑफ आरबीआई इंटरव्यू बोर्ड 2 टाइम्स, और जो इन्होंने इनसाइट शेयर किए ना इस सेशन में, दे आर ऑसम, जस्ट ऑसम। तो इस वीडियो को जरूर देखें, हाउ टू एस आरबीआई इंटरव्यू। टाइम नहीं होगा आपके पास मुझे पता है, बट जस्ट एक बार सर्च करके सुन लीजिए। ऑडियो शायद इतना सही नहीं होगा उस वीडियो में, बट जब आप सुनेंगे ना, जब एक एक वर्ड सुनेंगे, इट विल बी लाइक आप तृप्त हो जाएंगे। बाकी कुछ टॉपर्स की वीडियोस हैं जिन्होंने अच्छे मार्क्स लिए हैं आरबीआई इंटरव्यू में, उनकी स्ट्रैटेजी सुनिए, दैट हाउ डिड दे परफॉर्म गुड इन द इंटरव्यू। एक्चुअली दैट विल हेल्प यू टू नो मोर अबाउट द स्किल्स दैट यू नीड टू इनकलकेट टू बी गुड एट द इंटरव्यू। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। उसके अलावा आई थिंक दिस वन इज एन अल्टीमेट गाइड विच यू वुड नीड टू क्रैक आरबीआई। ये बुक आपकी लिस्ट में सबसे पहले होनी चाहिए। इस बुक में वी हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग अबाउट आरबीआई एग्जाम, अबाउट आरबीआई एज एन ऑर्गेनाइजेशन। आपको सिलेबस डिटेल मिल जाएगा, बुक लिस्ट जो मैंने बताई है उससे भी डिटेल मिल जाएगी। यू विल ऑल्सो गेट एक्सेस टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विच आर वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द एग्जाम। एग्जाम में पता ही नहीं क्या आ रहा है, किताबें कैसे पढ़ोगे? तो यहां से जो मैं पीवाईक्यू बार बार कह रहा हूं ना, वो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो। और ये हमारे कोर्सेज हैं, इन केस यू आर प्लानिंग, यू आर थिंकिंग, ठीक है। वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वेयर यू कैन क्लिक ऑन द लिंक एंड चेक अ सैंपल मटेरियल। हमारा गोल्ड पैकेज है भाई, जिसमें वी आर गिविंग यू एवरीथिंग, फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू, राइट, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। वी कैन हेल्प यू प्रिपेयर फॉर आरबीआई ग्रेड बी विदाउट एनी बुक, एनी वेबसाइट, जस्ट completing this course, and that too by spending 4 to 5 hours a day maximum on an average. वीकडे पे कम है तो वीकेंड पे लगा लो भाई, पढ़ना तो पड़ेगा। And in the silver pack we are mainly helping you with phase 2 and interview, and for phase 1 we are also giving GA। तो जिन्होंने क्वांट रीजनिंग इंग्लिश बहुत फोड़ के कर रखा है, बहुत अच्छा है, they can opt for the silver pack also। So this is for my side guys, wish you best of luck, ठीक है। तो ये चीज जरूर याद रखना कि किताबों को पढ़ना है बट एक लिमिटेड स्कोप में लेकर, बिकॉज दे आर नॉट हेल्पिंग यू प्रिपेयर 100%। करंट अफेयर्स है, प्रैक्टिस है, इवेल्युएशन है, उन चीजों पे भी ध्यान देना है, सो दैट यू आर नॉट वेरी लेट बाय द टाइम यू रियलाइज कि यार ये चीजें तो की नहीं तो फिर वो प्रिपरेशन कितनी होगी, वही 50% पे आके रुक जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद, विश यू बेस्ट ऑफ लक।